JT Arts and Science College, Honorable Principal, staff, and your students, I welcome all the dignitaries on the dais. It is a warm welcome to all intellectuals here. So, this is the gathering of intellectuals which is specially organized on the occasion of International Women's Day. Recently we have celebrated 115th International Women's Day, and on the occasion of this day, a special program is organized by our district court in collaboration with Department of English. Dear students, for the smooth functioning of any program, we need someone to guide us, to show us right path, and that's why it's necessary to select someone as a president. So for today's function, I nominate the name of our Honorable Principal, Dr. Salma Abdul Sattar Ma'am, as the president of this function, and I am seconding the same. I seek a permission to proceed further. May I, ma'am? Thank you so much. So, dear students, our JT Arts and Commerce College, which is specially for girls, is always organizing student-oriented activities. Throughout the year, various activities are conducted, and today also such activity is conducted by our college. Now this world is rapidly changing world, and in this world, it is necessary to make our young women aware about their rights, about their fundamental duties, and in order to make them aware about their legal duties, their rights, this program is organized by Department of English. Now, here is a gathering of intellectuals. We are going to felicitate the dignitaries on the dais, and really, we are honored that such great personalities are with us. This is for the first time our civil judge is with us. So, really, it is a great honor for us. Now, we are going to felicitate our dignitaries on the dais. First of all, we are going to felicitate our Honorable Civil Judge. So, Honorable Pimple sir, I request Tribhuvan sir to felicitate our Pimple sir. Honorable Pimple sir, Chief District Judge, Senior Division. So, give him a warm welcome. Thank you so much, sir. We have with us another great personality, that is Honorable Dolare Ma'am, Shraddha Dolare Ma'am, and she is also a civil judge, and I request Salma Ma'am to felicitate her. For the last 15 years, she is in this field. Thank you so much, ma'am. We have with us another great personality that is quite familiar to you all students. That is Honorable Dr. Fatima Ansari ma'am, who is medical officer. Now once again I request Salma ma'am to felicitate Fatima ma'am. Please ma'am.
Okay, so Honorable Bibi Fatima ma'am. So thank you so much, Salma ma'am. Another great personality with us, that is Honorable Jyoti Bhosle ma'am. Again, one well-known personality for JT campus. For the last so many years, she is attached to our college, and she is ex-mayor also. Now, once again, I request. Okay, I am going to felicitate Jyoti ma'am. It's an honor for me. Now, next personality with us, that is Honorable Advocate Kishore Tribhuvan sir, who is the Secretary of Bar Council. I request Munawar sir to felicitate Tribhuvan sir. Please sir. Munawar sir is IPC coordinator of our college. Thank you, sir. So next great personality with us is Honorable Nikam sir. I request Sawan sir to felicitate Advocate Nikam sir. Please, sir. Advocate already Nikam sir. Now, the next great personality is the person who has taken initiative to start all these programs and who is a mediator for this one, that is Honorable Shevale sir. Once again, I request Munawar sir to felicitate Advocate Shevale sir. Please, sir. Thank you so much, sir. So now our program of felicitation is over. Now I request Tribhuvan sir to come over here and handle this program further. Please, sir. 1 minute. Sorry, extremely sorry. Now I request Lodi Kanis Fatma ma'am to felicitate our honorable principal ma'am, Dr. Salma Abdul Sattar ma'am. Thank you so much, Lodi ma'am. Now, I request Advocate Kishore Tribhuvan sir to come over here and handle this program further. Please, sir. सबसे पहले मालेगांव वकील संघ की ओर से आपको पाक रमज़ान महीने की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आज के दिन आपको देना चाहता हूँ। अभी हम जहाँ आए हुए हैं, ये लीगल एड का मालेगांव में शायद उर्दू हाई स्कूल में, उर्दू कॉलेज में पहला प्रोग्राम है। इसकी वजह से दिल में इतनी घबराहट हो रही है कि भाई अभी पहला प्रोग्राम है और आपके सामने कैसे पेश आना है। यानी सबसे पहले दिक्कत आएगी हमारे लैंग्वेज की, क्योंकि हमने अभी तक ज़्यादा करके प्रोग्राम मराठी मीडियम में लिए है, मराठी कॉलेज में लिए है, इंग्लिश में भी लिए है,
लेकिन लैंग्वेज में जब आते हैं तो उर्दू लैंग्वेज में आते हैं तो इंग्लिश, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी ये सब अभी मिक्स करके आपके सामने हमको पेश आना है और आपके सामने प्रेजेंट करना है। तो कुछ बातें समझ में आई तो समझ लिए, नहीं समझ में आई तो भी समझ लीजिए। मालेगांव वकील संघ, तालुका विधि सेवा समिति मालेगांव वकील संघ और आपके जो JIT कॉलेज है, ये तीनों के कोलैबोरेशन से आज का ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम में अपने मालेगांव के जो न्यायाधीश है माननीय पिंपले साहब, डोलारे मैडम, हमारे एडवोकेट भोसले मैम जो आपके कॉलेज में हर बार आते रहते हैं, और हमारे आपके प्रिंसिपल सलमा मैडम, हमारे खरे मैडम और अपने डॉक्टर साहब और हमारे निकम साहब, और इस प्रोग्राम में आप सब शरीक हुए हैं। सबसे पहले आपका सबसे शुक्रिया अदा कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। आज का जो प्रोग्राम होने जा रहा है इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इस प्रोग्राम में आपने यहाँ इस कॉलेज के अंदर हमारे न्यायाधीश पिंपले साहब है, सेकंड दोलारी मैडम आए हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ टाइम वक्त बर्बाद न करते हुए मैं आज के अपने इस प्रोग्राम के जो वक्ते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, जो भोसले मैडम है उनको बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बारे में अपना 2 शब्द अपने मनोगत व्यक्त कीजिए। ऐसे में आपको उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के ऊपर अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। नमस्ते। रमज़ान महीने की पाक दुआएं आपके लिए करती हूँ। महिला दिन की शुभेच्छाएं देती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में उपस्थित आदरणीय जजेस, सभी स्टाफ मेंबर, ज़्यादा नाम लेके वक्त नहीं बर्बाद करना चाहूँगी। दूसरा, मेरी बहनें जो मेरे फैमिली की है, फातिमा आपा, मैं आपा कहूँगी, सलमा आपा, आप सभी। सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि हम बहनें अगर बात करना है तो मुझे तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम कोई आने वाला नहीं। अगर हम जिंदगी जीते हैं तो एक बात आपसे बहुत दिल से कहना चाहूँगी कि मजबूती से हमें जीना है। मैं विमेंस डे की कुछ हिस्ट्री वगैरह तो नहीं बताऊँगी, आज की ज़िंदगी क्या है इसके बारे में 2 शब्द कहूँगी। कभी फूलों की तरह मत जीना मेरी बहनों, कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगी पत्ती पत्ती होकर बिखर जाओगी। अगर जीना है तो उस पत्थर की तरह जीना, जिस दिन तराशी जाओगी खुदा बन जाओगी। इस तरह से अब अगर हम मजबूती से ज़िंदगी जीते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। आज हमारे सामने क्या दिक्कत है ये हम सोचेंगे, 100 साल पहले की बात क्या थी और 100 साल बाद क्या आने वाला है, इससे ज़्यादा अहमियत हम आज की ज़िंदगी में। आज आप लोग सभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस देश का, जब इस देश को आज़ादी मिली थी तो महात्मा गांधी से पूछा गया था, BBC लंदन ने मुलाकात ली थी कि आज़ादी के बारे में आपकी राय क्या है। तब गांधी जी ने बताया था, मैं अब तक इस देश को आज़ाद देश नहीं कहलाता, क्योंकि जब तक इस देश की महिला अपनी पैरों पे, अपनी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, तब तक मैं इस देश को आज़ाद देश नहीं कहलाता। मुझे ऐसा लगता है कि 75 कंप्लीट हुए हैं हमें आज़ादी को, फिर भी आज भी देखो हमारे सामने क्या है। हम लोग तो कॉलेज सीख रहे, आ रहे, हम नौकरियां कर रहे, लेकिन एक पिछड़ा हिस्सा है जो आज तालीम के लिए तरस रहा है। हम अगर हमारे आजू बाजू में देखें तो मैं बोलती, एक लड़की ने अगर ठान लिया कि जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं एक काम करूंगी कि मेरी वजह से 2 लड़कियां स्लम एरियाज़ की, गरीब बस्ती की स्कूलों में पढ़े। कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द चीफ डिफेंस ऑफ नेशन। अगर हमारा देश मजबूत बना है, तालीम मजबूत बनानी है।
हम कितनी भी बिल्डिंग में बनाए, कितना भी कुछ भी योजनाएं लाए, हमारा देश उससे मजबूत नहीं होगा। हमारा देश हमारी तालीम से मजबूत होगा। तो ये अगर हम ठान लेते हैं कि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी सुधरती है तो हमारी शिक्षा कामयाब हुई। दूसरा मैं कहना चाहूँगी, दूसरी बात कि आगे जाकर हर एक लड़की सोचती है कि मैं ये करियर करना चाहूँगी, मैं ये बनना चाहूँगी, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहूँगी, मेरी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजरे। कोई वकील बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई प्रिंसिपल, हर एक फील्ड में हम जा रहे हैं और हर एक फील्ड में हमने काबू कर लिया है। फिर भी कहना चाहूँगी कि जब एक फील्ड में हम काम करते हैं, अगर मैं वकील हूँ तो मुझे सोचना है कि 20% मेरी प्रैक्टिस फ्री ऑफ चार्ज हो। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे सोचना है कि क्यों ना मैं महीने में से 10 पेशेंट फ्री ऑफ चार्ज करूँ। अगर मैं टीचर बनूँ तो अगर मैं ट्यूशन लेती हूँ तो 10 स्टूडेंट क्यों ऐसे हो कि जिनको मेरी ज़रूरत है। अगर हम लोग काबिल लोग ऐसा सोचते हैं कि जो काबिल नहीं बने उन्हें हम काबिल बनाएं तो ज़िंदगी की हर एक परेशानी से हम गुजर सकते हैं। तो सोचना ये है कि हमारी ज़िंदगी हमें कैसी गुजारनी है और हमारी वजह से ज़िंदगी में कितने लोग खुश होते हैं, ये हमारे ज़िंदगी का मायना रखती है। तो इस पर हम अमल करें। बोलने वाले बहुत जन हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन दिक्कतें आगे भी बहुत आने वाली हैं क्योंकि हम मेल फीमेल इसमें जाते हैं। बहुत बार सोचते हैं कि हम औरत है इसीलिए हमें बहुत दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। फिर भी जो भी है उससे बदलाव लाना तो हमारे हाथ में है। हम एक इंसान है, हम औरत है या मर्द है, इसके पहले सोचना ज़रूरी है कि एक अच्छे इंसान हम हैं और हमारी तरफ हमारी समाज से और दुनिया से हमारी एक अपेक्षा है कि हमारी तरफ एक इंसानियत के नाते से देखें। हमारे लिए कानून ना बनाना पड़े। कानून क्यों बनाने पड़ते हैं? मैं एक सीधी बातों में बताती हूँ। जब हमारा घर में बच्चा सुनता नहीं तो हम सख्ती लगाते हैं कि आज तुला जेवायला मिलना नहीं, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। हम सख्ती लगाते हैं कि तू ऐसा करेगा तो तुझे ऐसी सज़ा मिलेगी। समाज में जब समस्याएं बढ़ती है, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं तो कानून बनाने पड़ते हैं। ज़्यादा कानून बनाना हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं, ऐसा मैं सोचती हूँ। जब हम समाज में देखते हैं कि पेशेंट अगर ज़्यादा है तो समाज का आरोग्य, समाज की सेहत खराब हो गई है। कोर्ट में अगर ज़्यादा केसेस हैं तो समाज में शांति नहीं है। कानून अगर ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं तो समाज की समस्याओं का बढ़ना हो रहा है। तो इतनी हमारी अपेक्षा समाज से है कि हमारी तरफ एक औरत, एक मर्द समझ के ना देखे, बल्कि हमारी तरफ एक इंसान समझ के देखे। कुछ लाइन कहते हुए मेरे शब्दों को मैं विराम देना चाहूँगी कि कौन हूँ मैं, क्या है मेरा नाम। कौन हूँ मैं, क्या है मेरा नाम। किस मिट्टी की बनी हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान। किस मिट्टी की बनी हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान। मेरी ही तो कोख से जन्मे है कृष्ण और भगवान। मेरी ही तो कोख से जन्मे है कृष्ण और भगवान। मेरी ही तो कोख से जन्मे है खुदा और इंसान। मेरी ही तो कोख से जन्मे है खुदा और इंसान। फिर मेरी ही जिंदगी पे क्यों होती है सारी दुनिया परेशान। फिर मेरी ही जिंदगी पे क्यों होती है सारी दुनिया परेशान। मेरी तो रग रग में बसता है हिंदुस्तान। कौन हूँ मैं, क्या है मेरा नाम। जिस दिन विदा हो जाऊंगी इस जहां से, जिस दिन विदा हो जाऊंगी इस जहां से, मेरे अर्थी के कोने कोने पे लिख देना मेरे यारों, मैं तो थी बस एक इंसान, बस एक इंसान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भोसले मैडम। बहुत ही अच्छे लफ्ज़ में बहुत ही आपने अपना जो मनोबल व्यक्त किया है बहुत ही बढ़िया किया है। इसके बाद में जो शख्स आने वाले हैं वो डॉक्टर बीबी फातिमा अंसारी मैम, जो कि एमपीसी ऑफिसर एट मालेगांव सिविल हॉस्पिटल एंड वुमेंस हॉस्पिटल है उनका खुद का, और जो अभी जो का एट वर्क जो है बुशरा बेबी केयर हॉस्पिटल जो नएपुरे में है, उनको कहना चाहूँगा कि आप आके अपना मनोबल व्यक्त कीजिए। मोहतरम जज साहब,
मोहतरमा प्रिंसिपल मैडम सलमा मैडम, आए हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान, प्रोफेसर्स और अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। बेटियाँ खुदा की तरफ से अता की हुई एक अनमोल तोहफ़ा हैं। बेटियाँ सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर जो खुदा को पसंद आए, बेटियाँ वहाँ होती हैं। यही बेटियाँ कभी बीवी, कभी माँ और कभी बहन की सूरत में समाज में प्यार, मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी का सबक सिखाती हैं। वो अपनी ताकत और अपनी बिसात से बढ़कर घर हो या ऑफिस, हर जगह ईमानदारी, मेहनत और लगन से काम करती हैं, कामयाबी हासिल करती हैं और सबका दिल जीत लेती हैं और खुशियाँ भी खेलती हैं। लेकिन अफसोस, पुराने ज़माने में जिस तरह लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, आज के इस मॉडर्न दौर में लड़कियों को पैदाइश से पहले ही सेक्स डिटर्मिनेशन करके माँ के पेट के अंदर ही कत्ल कर दिया जाता है। इसीलिए भारत सरकार ने लड़कियों की रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी पढ़ाई और उनकी फलाह के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया, जिसे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम। बेटियों को कमज़ोर, कमतर और लेस कॉम्पिटेंट समझा जाता है। शादी के पहले वो अपने भाई या अपने बाप के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं और शादी हो जाने के बाद अक्सर औरतें अपने शौहर या उनके ससुर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। उन्हें उनका कहना मानना और उसी को फॉलो करना कंपलसरी कई जगह पर होता है। वो अपनी मर्ज़ी की मालिक नहीं होती हैं। और हम इंटरनेशनल वीमेंस डे के मौके पर हर जगह जेंडर इक्वालिटी और वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। मगर याद रखिए कि एक लड़की क्या बनना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, किन चीज़ों से उसे खुशी हासिल होती है, वो कैसे जीना चाहती है, और किसी भी काम के लिए उसके घर के मर्दों पर ही मुनहसिर नहीं होना चाहिए। उसका खुद का भी अपनी मन मर्जी से किसी काम के लिए जो है करने की चाहत हो तो उसको परमिशन होनी चाहिए। उसी दिन हम जेंडर इक्वालिटी हो रही है ऐसा समझ सकते हैं। नौकरी पेशा या प्राइवेट बिजनेस करने वाली हर औरत को डिसीजन मेकिंग और अपनी कमाई का अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और ये कब मुमकिन है? ये कब होगा मुमकिन? जब हमारे यहाँ समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ हायर एजुकेशन हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएं और सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। जब डोमेस्टिक वायलेंस और वर्क प्लेस पर छेड़छाड़ के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लेडी एडवोकेट्स हमारे समाज में अवेलेबल हों, जो औरतों के हुकूक के लिए एक मजबूत इरादे के साथ लड़ सकें। जब एक बरसरे रोज़गार या सेल्फ डिपेंडेंट औरत समाज की दीगर कमज़ोर, माजूर, मुतल्लिका, बेवा और यतीमों की फलाह के लिए खुद भी कोशा हो और दीगर अहले हैसियत औरतों की मदद से किसी तंजीम के ज़रिए इन कमज़ोर औरतों की मदद के लिए कोशा हो और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बना सकें। जब समाज में पढ़ी लिखी और एम्पावर्ड लेडीज़ डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एब्यूज़ और साइबर बुली जैसे ख़तरनाक मसाइल को हल करने के लिए उन बहनों की, उन बेटियों की, उन माँओं और औरतों की सही रहनुमाई करें तो बहुत सी कमसिन बच्चियाँ या जवानी की उम्र में जो खुदकशी कर लेती हैं, ऐसी अमवात को हम जो है उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। कमसिन बच्चियों और औरतों को डिप्रेशन और जहनी कुफ्त का शिकार होने से हम बचा सकते हैं। आइए आज हम ये अहद करें कि हर कमज़ोर, ज़रूरतमंद और परेशान
परेशान हाल औरत की हम मदद करेंगे और उनके लिए एक तरक्की याफ्ता माशरे की तश्कील करेंगे और उनके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल को हम जो है वो तश्कील करेंगे कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। खुदा शुक्रिया मैम, आपने जो यहाँ पे बातें कही है सही में लेडीज़ ने भी एक जो जॉब है एडवोकेट जॉब, अगर उसमें अगर आप आ सकते तो उस देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए डॉक्टर तो होना ही होना है, लेकिन अगर आप एडवोकेट भी हो सकते हो तो देश के हित के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी हो। इसके बाद में जो शख्स आ रहे हैं वो जो हमारे न्यायाधीश है, सम्मानीय न्यायाधीश दोलारी मैडम, दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी बातें यहाँ पे रख सकते हैं। नमस्कार. आदरणीय दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्री पिंपळे साहेब, आदरणीय प्राचार्य मॅडम, आदरणीय ज्योती भोसले मॅडम, आदरणीय डॉक्टर मॅडम, मालेगाव वकील संघाचे सचिव श्रुती भोन साहेब, अधिवक्ता श्री निकम साहेब, आदरणीय मॅडम आणि इथं उपस्थित सर्व माझ्या मैत्रिणी, पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांची माफी मागते कारण मी मराठीत बोलते. आय होप की तुम्हाला कळत असेल, किमान थोडं बहुत कळत असेल. कळतं? मला खूप छान वाटलं कारण मला असं वाटलं की मी मराठीमध्ये इफेक्टिवली तुमच्याशी कम्युनिकेट करू शकेन आणि मी जे बोलणार आहे ते लीगल फील्डशी रिलेटेड आहे. आता मॅडमने सांगितलं की आपल्याला महिलांना सक्षमीकरण असणं गरजेचं आहे, आपल्याला फिजिकली सक्षम असणं गरजेचं आहे, मेंटली सक्षम असणं गरजेचं आहे, पण त्यासोबत मी म्हणेल आपल्याला लीगली सक्षम असणं गरजेचं आहे. लीगली सक्षम आपण कसे होऊ शकतो तर आपल्याला लीगल अवेअरनेस पाहिजे आणि तो अवेअरनेस कधी येईल आपल्याकडे जर आपल्याला आपल्याशी रिलेटेड आपल्यासाठी जे कायदे बनवलेले आहेत, ज्या कायद्यांमुळे आपल्याला माहिती होईल की आपल्यासोबत झालेलं एखादं कृत्य हे आपल्याबद्दलचं अत्याचार आहे, आपल्या विरुद्ध झालेली एखादी घटना ज्याला आपण वाचा फोडू शकू म्हणजे कंप्लेंट दाखल करू शकू. जर आपल्याला कळालंच नाही की हा गुन्हा आहे तर आपण कंप्लेंट करू का, आपण कधी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊ का, आपण कधी फॅमिली मेंबर्सला सांगू का, आपण सांगणार नाही कारण आपल्याला माहितीच नाही राहत हे गुन्हे आहेत. आणि म्हणून आपल्या महिलांशी रिलेटेड जे काही ऑफेन्सेस आहे किंवा आपल्या भारत सरकारने आपल्या महाराष्ट्र राज्याने जे काही कायदे आपल्या सक्षमीकरणासाठी बनवलेले आहेत त्या कायद्यांची मी थोडी बहुत आपल्याला माहिती देणार आहे. पहिल्यांदा तर मॅडम मी सांगेन आपण जे हे पोस्टर लावलेले आहेत ते पाहून मला फार आनंद झाला कारण आपल्याकडे व्हरायटी ऑफ फोटोज आहेत. फक्त एका फील्डशी रिलेटेड नाही, ज्या महिला उच्च पदस्थ पोहोचलेल्या आहेत, म्युझिकमध्ये आहेत, ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये आहेत, प्लेमध्ये स्पोर्ट्समध्ये आहेत, म्हणजे व्हरायटी आहे. म्हणजे मॅडमचा व्ह्यू असा दिसतोय की तुम्ही फक्त एका फील्डशी कन्स्ट्रेन राहिलं नाही पाहिजे तर व्हरायटी ऑफ फील्ड्समध्ये महिलांनी पुढे यायला पाहिजे. हा त्यांचा ॲप्रोच निश्चितच कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे मॅडम तुम्हाला पहिल्यांदा हॅट्स ऑफ. दुसरं ह्या गोष्टीसाठी आनंद झाला की लेडीज प्रिन्सिपल आहेत, मी मॅडमना पण म्हटलं कारण महिलांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी आपला हेड जर महिला असेल तर आपण इफेक्टिवली कम्युनिकेट करू शकतो, आपण आपल्या अडचणी फेअरली सांगू शकतो, ज्या काही आपल्या गोष्टी असतील पर्सनल पण गोष्टी असतील आपण त्या सक्षमपणे सांगू शकतो. आणि आनंद होतो आहे की मॅडमच्या ॲथॉरिटीखाली हे कॉलेज इतक्या छान रीतीने डेव्हलप होतं आहे आणि त्याच्यामुळे किमान मॅडमचा आदर्श पाहून आपण आणखी डेव्हलपमेंट करू शकाल. त्यामुळे मला खूप छान वाटतं आहे की एक तर इतका छान क्राऊड आहे, आम्हाला आमच्या कॉलेज डेची बरीचशी आठवण होऊन जाते. त्यामुळे तो एक फील असतो की कॉलेजमध्ये स्कूलमध्ये येण्याचा आनंद वेगळाच असतो. बऱ्याच वेळा कोर्टामध्ये काम करताना अनेक वेळा आपल्याकडच्या महिला येतात, मुली येतात ज्यांचं आम्हाला स्टेटमेंट रेकॉर्ड करावं लागतं.
त्या महिला अशा असतात किंवा त्या मुली असतात, लहानसुद्धा मुली आपल्याकडे येतात ज्यांच्या विरुद्ध सेक्शुअल हॅरॅसमेंटच्या किंवा अनेक बरेचसे ऑफेन्सेस घडलेले असतात आणि ज्यावेळेस आम्ही त्यांचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करतो त्या आम्हाला त्यांच्यासोबत झालेलं एखादा इन्सिडेंट सांगत असतात, त्यावेळेस आम्हाला बऱ्याच वेळा हे जाणवतं की हे घटना घडण्यामागचं कारण मुलीचं दुर्बलीकरण असणं, अशक्तपणा असणं, ती सेल्फ डिफेन्स नसणं किंवा दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जी मी सांगितली ती लिगली अवेअर नसणं, की एखादा समजा तिच्याकडे एखादा मेसेज आला, एखाद्याचा फोन कॉल आला, त्यावेळेसच ती महिला रेसिप्रोकेट नाही करत, ती महिला आणखी घाबरते, तिला काहीतरी वाचा फोडण्याची शक्यता वाटत नाही किंवा तिला वाटतं की समाजात कदाचित आपलीच बदनामी जास्त होईल आपण जर ह्याला काही बोललो तर, आणि त्यामुळे बऱ्याचशा घटना घडत असतात. त्यामुळे मी जे काही कायदे आपल्याला सांगणार आहे, माझी आपल्याला रिक्वेस्ट राहील की जिथे जिथे शक्य असेल, जिथे जिथे अशा घटना तुमच्यासोबत, तुमच्या शेजारच्या महिलांसोबत, तुमच्या कुटुंबातील महिलांसोबत घडत असतील तर त्यावेळेस तुम्ही पहिल्यांदा प्राधान्याने त्या घटनेला वाचा फोडली पाहिजे, त्या घटनेची तक्रार केली पाहिजे आणि त्या महिलेला सपोर्ट केला पाहिजे. इथंपर्यंत सांगितलेलं कळतंय का? अच्छा, तर मग मी कायदे सांगते थोडक्यात आपल्याला. पहिला कायदा आहे अँटी रॅगिंग ॲक्ट. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल, कॉलेजमध्ये कदाचित शिकवलेला असेल. अँटी रॅगिंग ॲक्टमध्ये काय सांगतं? रॅगिंगला प्रतिबंध करणारा कायदा, प्रिव्हेन्शन आणि प्रोटेक्शन त्याच्या अगेन्स्ट करणारा कायदा. तर रॅगिंग म्हणजे काय? समजा एखादा स्टुडंट आहे, त्याची एखादी लेखी अपमान केला, तोंडी अपमान केला किंवा त्याच्या विरुद्ध असं एखादं कृत्य केलं, एखादा असा ॲक्ट केला की ज्यामुळे त्या मुलाला दुःख होईल, त्याला काहीतरी कष्ट होतील किंवा त्याला एखादं इन्सल्टिंग ट्रीटमेंट दिली किंवा त्याच्यासोबत एखादं असभ्य वर्तन केलं किंवा त्याला एखादा असं कृत्य करण्यास भाग पाडलं ज्याच्यामुळे त्याची निंदा होऊ शकते किंवा त्याच्यासाठी एखादं दहशतीचं, एखादं भीतीचं वातावरण निर्माण केलं असेल, तर अशा प्रकारचं कोणतंही कृत्य केलं असेल तर ते रॅगिंग होतं. आपल्याला वेल नोन मूवीज आहे 3 इडियट्स, आपण सगळ्यांनी पाहिला आहे. तिथे एक छोटीशी घटना सांगितलेली आहे, दाखवलेली आहे आणि त्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला खूप झाला. त्यामुळे आपल्याला कळालं की किमान रॅगिंग काय असतं. पण त्याच्यामध्ये ती घटना तिथंपर्यंतच थांबली. आता त्याच्या पुढे आपण काय करू शकतो? समजा जर एखाद्या रॅगिंगची घटना आपल्यासोबत घडली तर आपण पहिल्यांदा संस्था प्रमुखांना ती घटना सांगणं आवश्यक आहे. जर संस्था प्रमुखांना ती घटना सांगितली किंवा तुम्हाला वाटलं की मला भीती वाटते, मी जाऊन पुढे तक्रार नाही करू शकत आहे, तुमचे पॅरेंट्स येतील किंवा ज्याला कोणाला ही घटना माहिती आहे, एखादा समंजस नागरिक असेल, सज्ञात नागरिक असेल, तो येऊन तक्रार करू शकतो. अशी तक्रार एखाद्या संस्थाचालकांकडे आल्यानंतर त्यांनी 7 दिवसात त्या तक्रारीची चौकशी करणं अपेक्षित असतं. त्या तक्रारीमध्ये प्राथमिक चौकशीत जर त्यांना गुन्हा निष्पन्न झाला तर त्या स्टुडंटचं लगेच निलंबन म्हणजे सस्पेन्शन करावं लागतं आणि त्यानंतर ती तक्रार संबंधित पोलीस स्टेशनकडे, ज्या पोलीस स्टेशनच्या ठिकाणी तो गुन्हा घडलेला असेल, ते स्कूल असेल तर त्या पोलीस स्टेशनकडे ती तक्रार वर्ग करावी लागते. आणि जर त्यांना असं वाटलं की अशा एखाद्या तक्रारीमध्ये तथ्य नाही, अशी कुठली घटना घडलेली नाही, तर ज्याने तक्रार केलेली असेल त्याला लेखी कळवणं आवश्यक आहे. जर एखाद्या संस्था चालकांनी अशा आलेल्या तक्रारीवर कारवाई केली नाही, त्याची चौकशी केली नाही, तर सदरचे संस्था चालक, संस्था प्रमुख देखील कारवाईला पात्र आहेत. आणि जर अशी एखादी घटना घडली, त्याची कोर्टामध्ये समितीसमोर चौकशी झाली आणि तो जर विद्यार्थी असा रॅगिंग करताना त्याच्या विरुद्धचा गुन्हा साबित झाला तर त्याला 2 वर्षापर्यंत शिक्षा होऊ शकते, 10,000 रुपयापर्यंतचा दंड होऊ शकतो आणि पुढील 5 वर्षासाठी त्याला कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश बंद केला जातो. म्हणजे पुढचे 5 वर्ष त्याला कुठल्याही संस्थेत ॲडमिशन घेता येत नाही. त्यामुळे जर आपल्यासोबत अशी कोणतीही घटना घडली तर हे पहिल्यांदा लक्षात ठेवायचं की हा कायदा तुमच्यासाठी आहे, तुम्ही अशी एखादी तक्रार करणं आवश्यक आहे. आता याशिवाय आपल्या भारत देशामध्ये महिलांशी संबंधित अनेक कायदे केलेले आहेत. आपण बऱ्याच वेळा ऐकतो की सगळे कायदे फक्त महिलांसाठी बनवलेले आहेत,
त्याच्यामुळे फक्त महिलांना प्रोटेक्शन दिलं जातं, महिलांचे राईट्स जपले जातात. पण जसं मॅडमने सांगितलं होतं, महिला आज दुर्बल घटक आहे. आपल्याला सक्षम व्हायचं आहे, आपल्याला सुदृढ व्हायचं आहे, आपल्याला सबल घटक व्हायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त जे कायदे आहेत ते महिलांना पुरस्कृत करण्यासाठी, महिलांचं सक्षमीकरण करण्यासाठी अस्तित्वात आणलेले आहेत. ते कायदे कोणते आहेत? पहिला, आपल्या भारतीय संविधानाचा आर्टिकल 39A आहे. तो कायदा काय सांगतो? ही तरतूद अशी आहे की सगळ्यांना मोफत कायदेविषयक मार्गदर्शन आणि सेवा पुरवली जाते. म्हणजे जर तुम्हाला कदाचित कोर्टात यावं लागेल, तुमच्याकडे पैशांची कमतरता असेल किंवा तुम्ही दुर्लक्षित घटकांमधील असाल आणि त्यावेळेस तुम्हाला जर एखाद्या कायदेशीर सल्ल्याची, कायदेशीर मदतीची, एखाद्या ॲडव्होकेटच्या अपॉइंटमेंटची गरज असेल, तर केवळ तुमच्याकडे पैसे नाहीत म्हणून तुमची ती सेवा खंडित होणार नाही. तुम्ही लीगल एडकडे, जसं आज आम्ही लीगल एड मार्फत आपल्याकडे कार्यक्रम घ्यायला आलो आहोत, त्या लीगल एड सेलकडे तुम्ही जाऊन तुमचा अर्ज देऊ शकता, तुम्ही लीगल एडची मागणी करू शकता आणि ती लीगल एड तुम्हाला प्रोव्हाइड करण्यात येते, जेणेकरून तुम्ही तुमची बाजू न्यायालयात सक्षमपणे मांडू शकाल. दुसरं आपल्याकडे आहे भारतीय दंडविधान, इंडियन पेनल कोड. बऱ्याच जणांनी याबद्दल ऐकलं असेल. 498 जनरल प्रोव्हिजन सगळ्यांनी ऐकली असेल कदाचित, ज्यामध्ये असं सांगितलेलं आहे की एखाद्या वुमनच्या अगेन्स्ट एखादं जर क्रुएल्टीची घटना घडली, एखादी छळाची घटना घडली, तिच्यावर एखादा शारीरिक अन्याय करण्यात आला किंवा तिच्याकडून पैशांची मागणी करण्यात आली, काही वस्तूंची मागणी करण्यात आली आणि त्याच्या पूर्ततेसाठी तिचा जर छळ केला असेल किंवा तिला इतका छळ केला असेल की ते आत्महत्येस म्हणजे सुसाईड करण्यापर्यंत तिचे पोहोचू शकेल, तर असा कुठलाही अत्याचार त्या तिच्या पतीकडून असेल, त्या पतीच्या नातेवाईकांकडून करण्यात आला असेल, तर त्याला 3 वर्षापर्यंत शिक्षा या कायद्यामध्ये होऊ शकते. दुसऱ्या प्रोव्हिजन आपल्याकडे आहे 354ची आहे, ज्यामध्ये महिलांचं जर लैंगिक शोषण होत असेल त्यावेळेस तिच्या विरुद्ध आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी असेल, 509चा गुन्हा आपल्याकडे आहे. या सगळ्या सेक्शन खाली जर महिलांच्या अगेन्स्ट एखादं कृत्य केलं जात असेल, तिचा पाठलाग केला जात असेल, तिच्यावर ॲसिड अटॅक केला जात असेल, अशा प्रकारची तिला धमकी दिली जात असेल, तिच्यावर सर्व्हिलन्स ठेवला जात असेल, तिचं कोणी छुपे फोटो काढत असतील, व्हिडिओज काढत असतील, तर या सगळ्या गुन्ह्यांसाठी सुद्धा आपल्या भारतीय दंडसंहितेमध्ये गुन्हे दिलेले आहेत, नमूद केलेले आहेत आणि त्याला शिक्षेची तरतूदसुद्धा केलेली आहे. दुसरा आपल्याकडचं 375, ज्याला 375 खाली शिक्षा आहे, म्हणजे रेपचा ऑफेन्स आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. 16 वर्षांखालील स्त्री असेल, महिला असेल किंवा त्याच्यावरील असेल आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जर एखादा कोणी लैंगिक अत्याचार त्यांच्या विरुद्ध केलेला असेल तर त्याला या कायद्यान्वये शिक्षा दिली जाते. चौथा आपल्याकडे कायदा आहे, कोणी बोर होत आहे का? किंवा माझ्याशी रिक्वेस्ट आहे की हे बेसिक कायदे आहेत ते तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. तुमच्या मदतीसाठी किंवा तुमच्या फॅमिली मेंबर्सच्या मदतीसाठी ही गरजेची गोष्ट आहे आणि त्यामुळे ठराविकच कायदे मी तुम्हाला सांगते, तेवढे फक्त लक्षपूर्वक ऐका. चौथा महत्त्वाचा कायदा आहे प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलन्स ॲक्ट, घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचं संरक्षण. हा कायदा आपण घरामध्ये राहतो, आपण कुटुंबामध्ये राहतो, आपली आई असेल, आपली बहीण असेल, आपली मैत्रीण असेल, आपण बऱ्याच वेळा पाहतो की त्यांना पतीकडून किंवा इतर फॅमिली मेंबर्सकडून अनेक वेळा अनेक प्रकारचा त्रास होतो. मग शारीरिक हिंसा असेल, मानसिक हिंसा असेल, आर्थिक हिंसा असेल, म्हणजे तिच्याकडचं पैसे काढून घेतले, तिचं स्त्रीधन काढून घेतलं किंवा तिला एखाद्या ठिकाणी नोकरी करण्यापासून परावृत्त केलं, मज्जाव केला त्या ठिकाणापासून, तर या सगळ्या गुन्ह्यांसाठी या कायद्यामध्ये तरतुदी केलेल्या आहेत. जर एखाद्या महिलेच्या अगेन्स्ट जर अशी एखादी क्रुएल्टी होत असेल तर त्या क्रुएल्टीपासून प्रोटेक्शन या कायद्यामध्ये देता येऊ शकतं. एखाद्या महिलेकडे स्वतःचं उत्पन्नाचं साधन नाही आहे, ती स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकत नाही, तर मेंटेनन्ससुद्धा या कायद्याखाली मागता येऊ शकतो. आर्थिक मदत मागता येते. त्या महिलेला जर निवासाची कुठेही सोय नसेल, म्हणजे तिला रेसिडेन्स नसेल, तर ती रेसिडेन्स मागू शकते, म्हणजे त्या पुरुषाच्या घरामध्ये राहण्याचा अधिकार मागू शकते. किंवा जर तिला वाटले की त्या घरात राहिल्यामुळे आपल्यावर आणखी काहीतरी क्रुएल्टी होण्याची शक्यता आहे, आपल्याला मारहाण होण्याची शक्यता आहे,
तर अशा वेळेस ती एखाद्या रेंटेड हाऊसमध्ये राहण्याची सुद्धा परमिशन मागू शकते आणि ते रेंट असेल तर त्या रिस्पॉन्डंटकडे, हजबंडकडे, इन केस वडील असतील वडिलांकडे सुद्धा मागता येऊ शकतं. जर त्या महिलेला काही मुलं असतील आणि ती मुलं जर पतीने काढून घेतली असतील तर त्या मुलांचा तात्पुरता ताबासुद्धा, कस्टडीसुद्धा ती मागू शकते. किंवा तिच्या कस्टडीतच मुलं आहेत आणि त्या नवऱ्याने धमकी दिलेली आहे की मी मुलांना घेऊन जाईन किंवा कस्टडीतून मी माझ्याकडे ठेवेन ती मुलं किंवा तुला कस्टडीतून बेदखल करेल, तर अशा वेळेस ते प्रोटेक्शनसुद्धा तिला मागता येतं. जर महिलांनी अशा एकत्र कुटुंबात राहत असताना त्या पुरुषाकडून किंवा त्या कुटुंबातल्या सदस्यांकडून जर तिला काही मारहाण झाली असेल, तिला मेडिकल ट्रीटमेंटची गरज असेल किंवा तिला काही कॉम्पेन्सेट करण्याची गरज असेल तर इकॉनॉमिक कॉम्पेन्सेशनसुद्धा ती या कायद्याखाली मागू शकते. त्याचशिवाय आपल्याकडे फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आहे. त्याच्यामध्ये पण एक सेक्शन 125चा आहे ज्याच्याखाली महिला मेंटेनन्स मागू शकते. आणि ह्या सगळ्या कायद्यांची विशेष बाब ही आहे, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ रिलिजन, स्त्री कुठल्याही रिलिजनची असो, ती हिंदू असो, ती मुस्लिम असो, ती ख्रिश्चन असो, कुठल्याही रिलिजनची असो, फक्त ती स्त्री असेल आणि तिच्या विरुद्ध जर एखादा असा कुठलाही ऑफेन्स घडला असेल तर ती या ॲक्टखाली, या प्रोव्हिजन्स खाली कोर्टामध्ये ॲप्लिकेशन दाखल करू शकते. त्यामुळं माझी आपल्या सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे की आपल्याला जर अशा काही अडचणींचा सामना करावा लागत असेल तर कृपया न घाबरता आपल्या फॅमिली मेंबर्सना कळवा, आपल्या जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये संपर्क साधा आणि अशा काही गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न करा. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आपण JD कॉलेजला येऊन आणि मराठीमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करून आपण या सगळ्यांची मनं जिंकलेली आहेत मॅडम, खरं सांगायला गेलं तर. क्योंकि आप हर रोज़ उर्दू लैंग्वेज सुनते हो, हिंदी लैंग्वेज सुनते हो, इंग्लिश सुनते हो, बराबर है. आज पहिली बार मराठी सुने ना आपले सर. म्हणजे आपण आज सगळ्यांचं मनं जिंकलेलं आहेत मॅडम. खरोखर अतिशय सुंदर आपण मनोगत व्यक्त केलं. और मैडम ने जो आपसे जो बात कही है उसमें जो कानून के जो कायदे बताए तो उन्होंने एक ही चाहा है कि लेडीज़ के लिए बहुत सारे फेवर में कानून आए हैं, इसलिए आप कुछ भी घबराओ मत. जो कुछ आपके ऊपर जो कुछ दिक्कतें आती होंगी, अपने संस्था चालक होंगे, पॉलिटिशियन होंगे या अदर कोई सोशल वर्कर होगा, उसको आप बात ज़रूर कहिए, यानी वो अपना प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाता है, कोई डरने की कोई बात नहीं रहती है. थैंक यू मैम. और इसके बाद में जिनके लिए आप इतने यानी मेरे ख्याल से 2.5 घंटे से आप बैठे हैं जिनको सुनने के लिए, ऐसे हमारे मालेगांव के न्यायाधीश पिंपले साहब, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आकर अपनी बातें रखिए. मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी आदरणीय दुलारे मैडम, ऑनरेबल प्रिंसिपल मैडम, आदरणीय ज्योति भोसले मैडम, ऑनरेबल डॉक्टर बीबी फातिमा, हमारे बार के सेक्रेटरी श्री त्रिभुवन साहब और हमारे वकील साहब. बच्चों, मैं यहाँ पे जो आया हूँ, आज के प्रोग्राम का आपको बेसिक थीम मालूम है? कौन सा? बोलिए. हाँ बोलिए. मैं यहाँ पे इंटरेक्शन करने के लिए आया हूँ, आपको ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया हूँ, ये ध्यान में रखो आप पहले. बोलो अब ये. हाँ बोलो बेटा, कौन सा आज काय के लिए आए हम? वुमेन्स डे. कौन सा डेट था वो? 8 मार्च. 8 मार्च वॉज वर्ल्ड वुमेन्स डे. और उसके 2 दिन बाद 10 तारीख को इंटरनेशनल जजेस वुमेन जजेस डे था. 10 तारीख को. और ये जो वुमेन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं,
उसके स्टार्टिंग में मैं आपको वो हिस्ट्री वगैरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि कानून के बारे में हमारे डॉलर मैडम ने बोला, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर फातिमा बीबी फातिमा ने बोला, भोसले मैडम ने भी बोला। स्टार्टिंग में त्रिभुवन साहब ने एक वर्ड बोला कि डर लग रहा है यहाँ, बराबर है ना? तो आपको बोलता हूँ मुझे तो खौफ लग रहा है। और उसका रीजन क्या है मालूम है? 8 मार्च महिला दिन है, सभी महिलाएं हैं। और 24 साल पहले का मैं एक इंसिडेंट बोलता हूँ। 24 साल पहले जो है ना, मेरे ससुर ने मुझे एक नगीना गिफ्ट दिया, और वो नगीना लाने के लिए जो है बैंड बाजे के साथ मैं गया। वहां से उनकी बेटी को लेके मेरे घर में आया 24 साल पहले, और तब से मेरे घर में महिला राज आने शुरू हुआ, मेरा आवाज बंद हो गया। आज मैं आपके मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे थोड़ा आवाज ऐसे ही तालियों के बारे में मैं आपको अभी जो तालियां बजाया ना हमने, मैं सातारा में पोस्टिंग, इससे पहले मैंने अबाउट 400-500 लेक्चर्स दिए होंगे, भाषण किया होगा। सब सुनते रहे, उनकी समझ में आया नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम, बट आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने बोल दिया कुछ। तो सातारा में रयत शिक्षण संस्था का एक डीएड कॉलेज था, डीएड बोल तो टीचर लोग। मैंने स्टार्ट किया कि बच्चों, जब भी मेरा भाषण बोर लगे आप तालियां बजाओ, और इतना कहने के बाद फट से तालियां। लेकिन उनको नहीं मालूम था, मैं भी उनका गुरु था। मैंने बोला ये तालियों की गूंज की वजह से जो लोग सोए थे ना बच्चे, वो जाग गए, और अभी मैं आ गया। सेकेंड, ये आज का जो प्रोग्राम हमने अरेंज किया, उसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर बीबी फातिमा। उसका रीजन ये है, कुछ दिन पहले मैं किला काकड़ी स्कूल में गया था। वहाँ पे डॉक्टर साहब भी थे, वहाँ पे हमने प्रोग्राम अरेंज किया। उन्होंने ऐसे, जैसे मैं गाड़ी में बैठ रहा था, उन्होंने बोला कि सर ये हमारे एरिया में, हमारे कॉलेज में कभी प्रोग्राम हुआ नहीं है। तो मैं बोला क्यों नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ लीगल एड। बाकी के बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन लीगल एड, जो लीगल एड एक डिपार्टमेंट है बेटा कोर्ट का, उसका काम ही ये है कि अवेयरनेस फैलाया जाए। तो ये चीजें जो है, ये करने के लिए उनका शुक्रगुजार हूं मैं कि उन्होंने पहला इंस्पायर। सेकेंड थिंग मैं आपको बोलता हूँ, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरे हाथ में ऐसा कागज वगैरह कभी भी नहीं रहता, लेकिन ये पहला इंसिडेंट ऐसा है जहाँ पे मुझे लिख के लेके आना पड़ा, क्योंकि महिला दिन के हमारा आवाज ही दब जाता है। तो कभी अगर भूल गया तो यहाँ पे मैं जब आया, डायस पे बैठा, मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आज मैं मेरी बेटी को भी लाने वाला था, लेकिन उसका MSG कॉलेज में है वो, उसका 11th का प्रैक्टिकल का एग्जाम था, इसलिए वो नहीं आई। क्योंकि आई वॉज थिंकिंग उसको भी मैं बच्चों में ही करूँ। और आज का प्रोग्राम जिन्होंने अरेंज करने के लिए, मैं बोला ना बीबी फातिमा, ये सारी फोटोज है बच्चों, उसमें मैं एक फोटो ढूंढ रहा था जस्टिस फातिमा बीबी का। ये बीबी फातिमा है और मैं ढूंढ रहा था जस्टिस फातिमा। जस्टिस फातिमा बीबी जो थी, वहां पर फोटो है, मैंने ढूंढा वो फोटो बराबर। शी वॉज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज थी। सेकेंड थिंग, आपको एक बात बोलूं, इंडिया की फर्स्ट सिटीजन कौन है आप बोलते हैं? भारत की पहली
सिटीजन जो जिसको नागरिक बोलते हैं, यहाँ पे राज्यशास्त्र के वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस के वगैरह है ना? हाँ, अभी मैडम ने बोला कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो कौन है? आदरणीय द्रौपदी मुर्मू। मतलब सब तरफ महिला वाले हैं, स्टार्टिंग उन्हीं से हो रही है। मुझे मालूम है रमजान का महीना है, आप लोग थके हुए हैं और मैं आपको थोड़ा बोर कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप चिंता मत करो, मैं बोर करूंगा, तो मेरी आदत मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चों एक बात ध्यान में रखो, अभी मैं यहाँ पे एंट्री किया, एंट्री करने के बाद आपके प्रिंसिपल मैडम ने बोला कि यहाँ कैंपस में 14,000 स्टूडेंट्स है, पढ़ाई नहीं, तालीम जो है बहुत जरूरी है बेटा, वो कभी मत छोड़ो। और जैसे ही मैंने 14,000 स्टूडेंट्स का ये स्ट्रेंथ सुना, मुझे एक शेर याद आया जो कि कश्मीर के बारे में लिखा गया था इनका, गर फिर दो जबरुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। दुनिया में अगर कहाँ पे स्वर्ग है तो यहीं पे है, और आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि ये 14,000 स्टूडेंट्स अगर है तो स्वर्ग इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि लड़कियों की तालीम के लिए जो तकलीफें होती है ना, ये जब आप बाहर दुनिया में जाओगे ना तब पता चलता। आई डोंट नो, ये अभी ऑनरेबल हारून अंसारी साहब कौन थे, शायद फाउंडर वगैरह हो सकते हैं आपके, उन्होंने जो लिखा हुआ वर्ड है, आई वॉन्ट टू रिमूव द स्टिग्मा ऑफ इलिटरेसी फ्रॉम द फोरहेड ऑफ मुस्लिम वुमन बिलोंगिंग टू सिटी ऑफ मालेगांव। नॉट ओनली फॉर सिटी ऑफ मालेगांव, हर तरफ से वो मिटना चाहिए बेटा। ये उस वक्त लिखा था उन्होंने, अभी जो है आप लोगों की जिम्मेदारी है। सेकेंड थिंग, आपको जो हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वगैरह वगैरह जो बोलते हैं ना, आपने कभी ये ऐसा सुना कि वो फलाना सलमान भाई पेट से है? सुना क्या? बोलो मुझे, मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है साइंस आगे गया होगा, नहीं ना? वो अब्दुल भाई को 2 बच्चे हुए, ऐसा नहीं सुना ना? मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप ध्यान में रखिए। जब नया जनरेशन बनाने की ताकत आप में है, अगर महिला नहीं रहती, मेरी माँ नहीं रहती ना, तो मैं रहता ही नहीं। तो डोंट फील योरसेल्फ एज अ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उनका पढ़ा है कभी, अग्निपंख आपने पढ़ा है, विंग्स ऑफ फायर? अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बोलता हूँ पढ़ लीजिए। बहुत बार ऐसे होता है पढ़ते पढ़ते हमको नींद आ जाती है, उससे अच्छा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जरूर देखो। कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। पुअर्टी के हिसाब से मत सोचो कि मैं तालीम लूंगा या नहीं लूंगा। एक वक्त भूखा रहना पड़े तो भी मेरी पढ़ाई जरूरी है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा कहते हैं। और एक चीज रहती है, जैसे मेरा वो नगीना के बारे में बोला ना मैंने, बैंड बाजा के साथ मेरे घर में लाया वगैरह। एक बात है बेटा, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, उसके सिवा हो ही नहीं सकता। मेरे लाइफ में मैं आपको बोलता हूँ, फर्स्ट तो माँ है जो कभी आपके बारे में बुरा सोचती नहीं, सभी भला ही हो, उसको तो हम मतलब स्किप कर ही नहीं सकते। सेकंड मेरी वाइफ है, मेरे लिए आई एम सही, जिसको मैंने वो नगीना बोल के बोला, बिकॉज आफ्टर माई मैरिज आई हैव कंप्लीटेड माई लॉ एंड ज्वाइन जुडिशियल, क्रेडिट गोज टू हर। थर्ड थिंग, दोस्त लोग जो है ना, दोस्त बहुत अच्छे मिलने चाहिए। आपको बोलता हूँ, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी बोलते हैं। मेरी एक दोस्त है अभी, शी सीनियर डिवीजन, ये डोलारे मैडम की बैचमेट है,
मौसम आतार बोलते हैं। सुबह दोपहर शाम जब भी नमाज पढ़ती है वो मेरे लिए दुआ फूकती है। वे बेस्ट फ्रेंड्स आपको बोलता हूं। जब भी मैं तकलीफ में रहता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे रहती है कि हम माँ बाप के साथ भी शेयर नहीं कर सकते बेटा, बट दोस्त के साथ कर सकते शेयर। मैं जब भी तकलीफ में रहता हूं, मेरा एक फेवरेट गाना है, मैं आपको बोलता हूं, आप भी देख लीजिए कभी तो अगर मिला चांस तो वो गाना मैं ऐसे ही जब भी मैं सुनता हूँ, मेरी बीवी आके मुझे कुछ तो तकलीफ है तुमको, वो उसको अवेयरनेस। हाँ, अभी मैं यहाँ पे आने से पहले भी मैं गुनगुनाया था परसों दिन सो, बोले क्या तकलीफ है तुमको? मैं बेचारा गरीब आदमी ऐसे बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बच्चों को 2 लाइन बोलने वाला था इसके लिए। हाँ बोले ठीक। वो ऐसा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधिया तो पर उसका खैर मकदम, तूफान ही से लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल सरोवर ये बीज जो जड़ा है। ये जो अभी आप कॉलेज के स्टूडेंट्स है ना, दिस इज बीज, और इसका बड़ा वाला वृक्ष होना चाहिए। और जब आप पढ़ के तालीम लेके बड़े हो जाओगे, तब आप दूसरों को छाया दे सकोगे बेटा। बीच में मुझे खाने को नहीं मिला, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, नॉट मिस। एंड सेकेंड थिंग मैं बोलता हूँ, हर एक की मानसिक अवस्था जो है, मेंटेलिटी या ग्रास्पिंग पावर ऐसी कभी हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा एक जैसा हुआ तो हर कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, हर कोई इंदिरा गांधी बनेगा, हर कोई सुरीला लता मंगेशकर बनेगी, हर कोई डोलारे मैडम बनेगी, हमारे इसे जज जैसा डॉक्टर साहब बनेगी। ऐसा कभी नहीं होता बेटा, ऐसा कभी भी और कहीं पर भी नहीं होता। एक मैथ्स में होशियार हो सकता है, रैंगलर हो सकता है, एक इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा हो सकता है। तो डोंट फील इन्फीरियर्स। हम क्या करते हैं मालूम है, मेरे सामने क्या है वो कभी नहीं देखती, लेकिन मेरी दोस्त जो है जैनुमा को 98% मार्क्स मिले, अरे तू यार उसका नसीब है। सेकेंड थिंग और एक बात बोलता हूँ मैं आपको, हम यहाँ पे वी आर पपेट्स। मैं आज यहाँ पर भी जो बोल रहा हूँ ना, उसने पूरा लिख के लाया। इसलिए कल के लिए मत सोचो यार, कल जो है ना वो अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव। कल मुझे तकलीफें होंगी, इसका मतलब ये भी नहीं कल आपका एग्जाम है और सोचिए मैं क्यों पढ़ूं, ऐसा मत करो। डोंट डू सच थिंग्स, टेक इट इन पॉजिटिव वे। बोलने के लिए तो बहुत सारा है मेरे पास, लेकिन अभी जो वक्त का तकाजा है ना, उम्र का लिहाजा है, वक्त का तकाजा है। मेरी भी उम्र हो चुकी है, आई हैव क्रॉस्ड 50 इयर्स। तो हम लोग जो है ना, हम लोग पीछे क्यों आते हैं? मैं आपको जैसा वीकर सेक्शन, हमने वीकर सेक्शन खुद को समझा, खत्म बेटा। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। और जो अभी आउटेजिंग मोडेस्टी वगैरह मोलेस्टेशन का मैडम ने बोला ना, आपको एक बात बोलता हूँ, आपके हर एक के पर्स में जो है ना मिर्च पाउडर चाहिए जरूर, और वो रखो। गुड टच बैड टच वो तो आप अभी ग्रेजुएशन के लड़कियां हो वो तो आपको मालूम है। और मोलेस्टेशन के बारे में मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो मैंने अबाउट 10 साल प्रैक्टिस की है, 10-15 साल सर्विस की है। मोलेस्टेशन जो होता है ना बेटा, रिश्तेदारों की तरफ से सबसे ज़्यादा होता है। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट लगा तो उसको ठोक दो, बिकॉज अ स्टिच एट अ टाइम सेव्स 9। आगे के 10 इंसिडेंट्स बच सकते हैं। ये चीजें कभी मत भूलो, मैं आपको बोलता हूं।
हम लोग क्या सोचते, लोग क्या कहेंगे, है ना। अगर कुछ नहीं है, अरे लोग क्या कहेंगे वो भी अगर तुम सोचोगे तो कैसा, उनके लिए थोड़ा रख दो यार, उनके लिए रख दो उनका सोचने का। वो सोचते सोचते हम हमारे दिमाग का मेस नहीं करने की जरूरत है हमको। तालीम का एक बात बोलता हूं मैं आपको, अपनी तालीम जो है ना बेटा कैसी होनी चाहिए, हम इंसानों को जोड़ना। एक स्टोरी मुझे याद आती है, एक इंडिया का मैप था, उसके ऐसे अलग 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 टुकड़े किए वाले थे, उसको जोड़ना रहता है। एक टीचर बहुत देर से वो ट्राई करते हुए रहता है कि उसको मैं जोड़ूं, वो एक साथ जुड़ता ही। एक स्टूडेंट उठता है और बोलता सर मैं जोड़ूं। बोला अरे यहाँ तो 1 घंटा हुआ मुझे नहीं जमा, तू कैसा ये करेगा? बोला मुझे एक चांस तो दे दो। टीचर बोला ठीक है। वो उसने जो है 5 मिनट में वो मैप पूरा बना। टीचर भी ऐसे शॉक हो गया, जो 2 घंटे से मुझे नहीं आया वो बच्चे ने इतनी जल्दी। बच्चे को पूछा गया कि तूने क्यों? सर बोला आपका ध्यान नहीं था, आप जिस तरफ से मैप देख रहे थे उसके पीछे एक इंसान का पिक्चर था और मैंने क्या किया, वो इंसान का पिक्चर जोड़ दिया मैप अपने आप। तो ये कड़ी हम लोगों को जोड़ने आनी चाहिए। हम पढ़ाई किए बोल तो बहुत बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। जिसका उसका नसीब है बेटा। तकदीर बनाने वाले तूने कभी न की, मालूम है ना, तकदीर बनाने वाले तूने कभी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। कोई इंजीनियर बन गया था। अभी मेरे स्कूल का, मैं अभी जो पीछे बैठे वाले लड़के हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ आई वॉज बैक बेंचर। मैं बहुत हर एक भाषण में मैं आपको बोलता हूँ ये चीज, मैं जानबूझ के बोलता हूँ। आई वॉज बैक बेंचर। इंग्लिश में 2 बार 10th में फेल हो चुका हूँ। यस, दिस इज रियलिटी। मेरे स्टाफ को भी मैं बोलता हूँ, वो भी ऐसे शौक, मैं इनको सर्विस बुक देता, सर्विस बुक में इंटरव्यू। कैन यू बिलीव? बट दिस इज रियलिटी बेटा। लेकिन उसके बाद जो है ना, मैं 11th से लेके आगे टॉपर ही रहा। उसके बाद मैंने कभी पीछे, क्योंकि वो इंसिडेंट मेरी लाइफ चेंज कर दिया। और ये चीजें जो रहती है छोटी छोटी रहती है। अगर मैं 10th में पास हुआ और होता तो बात अलग रहती कि मैं कोई और बिजनेस में, मुझे जाना था बिजनेस में, आ गया सर्विस में, क्योंकि ऊपर वाले ने लिखा था। मैं 13 बिजनेस करके 14वीं सर्विस में आया हूँ, क्योंकि इट वॉज माई डेस्टिनी। एंड कीप फेथ ऑन डेस्टिनी। उसके ऊपर पूरा ब्लाइंड फेथ रखो। मैं बोलता हूँ वो कभी गलत, कभी भी अपने लिए गलत नहीं सोचता। मराठी में एक गाना है, जाने दिल्या तुझी देईल तुझी चारा, ठेवूनी हा भरवसा मांडियाला बसा। जिसने ऊपर से मुझे भेजा है ना, वो सब तरतूब करेगा। मैं क्यों सोचूं? इसका मतलब ये नहीं कि हम निग्लिजेंट। यू शुड बी विजिलेंट। पढ़ाई में अभी मेरा क्या धर्म है मालूम है आप लोगों का? जो टीचर पढ़ाते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना। बोर होता है, बहुत बार बोर होता है, लेकिन ये चीज हमने अगर अभी ये की। सेकेंड थिंग, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। क्योंकि एक माँ बाप जो है एक कुटुंब, फैमिली बनाते हैं, लेकिन एक टीचर पूरा जनरेशन बनाता है। ध्यान में रखो, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनका रेस्पेक्ट, मैं आज भी जब भी कभी गया ना गांव में, मेरे टीचर्स के पैर छुए बिना आता नहीं। मेरे बच्चों को भी मैंने किया। चलो अभी बहुत बोर हो चुका है, मुझे मालूम है आपके चेहरे जो है ऐसे दिख रहे हैं। जाते जाते मैं इतना बोलता हूँ, अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही।
और सबको बहुत अच्छी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी। और सर ने जो बात बताई, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और यहाँ सब वुमेंस होना चाहिए था, तो फिर सर को क्यों बुलाए? नहीं आया होगा किसी ने किसी के दिमाग के अंदर ये बात, सर को हमने इसलिए बुलाए क्योंकि सर ने 24 साल चुप्पी बैठे थे घर के अंदर, और आज सर ने ये चुप्पी ओपन कर दिए है। और आज यहाँ से सर ये अभी चुप्पी बंद करके अभी बोलना चालू करने वाले घर के अंदर कि भाई मैंने 24 साल मैंने सहा है, आज मैंने वुमेंस डे के अंदर बहुत सारी बातें रखी, अब मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ। इसलिए हमने सर को बोला सर आप आ जाइए और अपना लेक्चर दीजिए, यानी आपकी चुप्पी बंद होके आप अपना आगे जो है बोलना चालू करेंगे, इसलिए हमने सर को इधर बुलाया था। सो ये अभी जो प्रोग्राम था, आपने अभी दूसरी सोच ये भी रखे होंगे कि वुमेंस डे है, यहाँ पर सब जजेस को क्यों बुलाए, हो सके सोशल वर्क आना चाहते थे, तो वुमेंस डे का और जस्टिस का क्या रिलेशन है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय जो है, जो हम विधि सेवा समिति कहते हैं, तो वो सिर्फ कानून और कायदे के दायरे में नहीं चलते, उनके अंदर एक सोशल व्यू भी है। और वो सोशल व्यू है तो आप तक टच होना चाहिए। जो कुछ बातें आपको मालूम नहीं है कानून के बारे में बोलो, जो सोशल बारे में बोलो। अभी आपने डोलारे मैडम ने आपको बताया है जो कानून है, जो कायदे लेडीज़ के बारे में कैसे कैसे चलते हैं, यानी ये सब टच आपके साथ में होना चाहिए। यही हमारा उच्च न्यायालय का जो व्यू है वो व्यू लेके हम चल रहे हैं। और उसकी वजह से जो तालुका लेवल के ऊपर जो तालुका विधि सेवा समिति है अपना काम करते रहती है, इस वजह से हम आज के दिन आपके सामने आए हैं। ये हमारी एक सोच है। और अभी जो प्रोग्राम का जो अपन लास्ट एंड में जो अपन आए हैं, अभी इस प्रोग्राम के अंदर आपके जो अभी हमने जो आपने हमारा जो इस्तेकबाल किया सबका, तो मैंने सब स्टूडेंट के ऊपर देखा, जब मैडम का किया, सर का किया, मेरा क्या, तो बहुत कम ताली बजती थी और किसी के मुंह पे इतना ऐसा लगने रहा था कि भाई खुशी है। लेकिन जब आपके सदर, आपके जो प्रिंसिपल है, जब उनका नाम आया तो सबके मुंह पे हंसी और बहुत जोर से ताली बजी मैडम। मैं सर को आपका इसलिए है कि यहाँ पे मैडम सर ने आपको बताया कि 14,000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके कैंपस के अंदर। 1100 स्टूडेंट ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जो तालीम मैडम आपको दे रहे हैं ये इसी की जो पावती है मैडम, इसी को आपको एक पावती ये लोगों ने दिया है, स्टूडेंट ने दिया है। तो आपके लिए बहुत बहुत हैट्स ऑफ आपने मैडम ने किया ही है, मैं भी आपको हैट्स ऑफ करता हूँ। तो सुनिए और देखिए, आप इनको तो आप सुनना चाहते थे, लेकिन आप मैडम तो अगर आपको हर रोज़ डांटती होंगी, लेकिन आपको आज डांटने वाली नहीं है। आपसे बहुत अच्छे से प्यार से आपसे कुछ बातें कहने वाली है, और उतनी अच्छे से आप वो बातें सुनेंगे और उनके कदमों के ऊपर आप भी चलेंगे। इसलिए मैं मैडम को बुलाना चाहता हूँ कि आप अपनी बातें यहाँ पे रखिए। Thank you, sir. Thank you very much. Honorable Shri S.V. Pimpile Sahib, Honorable Shrimati S.J. Dolare Ma'am, Honorable Dr. B.B. Fatima Ma'am, Honorable Advocate Jyoti Bhosle Ma'am, Honorable Advocate Kishore Tribhavan Sahib, Honorable Advocate Nikam Sahib, Honorable Shri S.B. Shivade Sahib, my colleagues, teaching associates, dear student friends, a very good morning to all of you. मासूम रोज़ेदार बड़ा है तो मुंडे ही ला रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि रोज़ा रखने के बावजूद आप बैठे हैं और हमें सुन रहे हैं। मैं जेटी मैनेजमेंट, स्पेशली ऑनरेबल नेहाल अहमद अंसारी साहब, ऑनरेबल अनीस अहमद अंसारी साहब, एडवोकेट न्याज अहमद लोधी साहब, इन तमाम की जानिब से आए हुए तमाम मेहमानों का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ कि आज हमें इस लायक समझा गया कि हमारे दरमियान इतनी बड़ी हस्ती, आई एम ऑन क्लाउड 9 सर, और बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है ज्योति मैडम। और ये कभी हमारा भी ड्रीम था सर कि जजेस से मिलेंगे, जजेस से बात करेंगे, अब ऐसा ही मेरे बच्चों का भी ख्वाब है। बोलिए जल्दी, मिलना चाह रहे थे आप भी,
और जैसे ही सर उन्होंने सुना कि एक नहीं 2 जज आ रहे हैं तो बहुत खुश हुए बच्चे, और वो रोज़ा रखने के बावजूद भी इस प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हुए सर। तो क्रेडिट गोज़ टू यू। ये मेरे बच्चे आज यहाँ पे मौजूद है सर, और ये सब जो है बड़े जो है एंथुसियास्टिक थे। तो सर इनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है मैं आपसे करना चाहूँगी कि अभी तो रमज़ान है, बट आफ्टर ईद सर हम चाहेंगे कि आपके कोर्ट को जो है हम विज़िट करें अपने बच्चों के साथ। एश्योरेंस देता हूँ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक स्पेशल डिपार्टमेंट है और यू आर ऑलवेज वेलकम। ये सिस्टम कैसे चलता है अपने को मालूम होना चाहिए, और वो 100% मैडम की तरफ से जैसे रिक्वेस्ट आई वो 100% एक्सेप्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑनर फॉर अस। और सर डेफिनेटली वी विल बी देयर इंशाल्लाह। कई सालों से डॉक्टर लोधी कनीज़ फातिमा मैम प्लान कर ही रही थी कि हमें जाना है, बट मौका नहीं मिल रहा था, एंड इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर वी ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बोलिएगा, फीडबैक देंगे कैसा रहा आज का प्रोग्राम? रिसोर्स पर्सन कैसे थे? बहुत अच्छे थे ना? सीखा कि नहीं सीखा कुछ? तो भर भर के लेके जाओगे नॉलेज आज? जो कुछ आप सीखे बताओगे दूसरों को भी? अभी मैम ने कहा था अपने लेक्चर में कि मैं हूँ, मेरे जैसी 2 लड़कियों को तो पढ़ाऊँगी। हाँ मैडम, यही मैसेज मैं भी इनको देती रहती हूँ कि आप तो पढ़ रहे हो पर अपने जैसे 2 लोगों को पढ़ाओ। तो पढ़ाओगे फिर लीगल अवेयरनेस करोगे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, हमेशा बोलती हूँ ना। अब कायदे में रहोगे तो फिर ये काम करना है ना। कि देखिए मैम ने इतना बेहतरीन लेक्चर दिया, जज मैडम ने पूरा इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था मैडम जब आप बोल रही थी और मेरे बच्चे सुन रहे थे ना, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मराठी आ रही इनको। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर था मैम आपका भी, वेरी नाइस। हमारे डॉक्टर बीबी फातिमा मैम, उन्होंने जिस अंदाज में बात कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि मैडम जब एज स्टूडेंट थी और स्पीच दिया करती थी तो वो इंसिडेंट याद आया कि हर डिबेट कंपटीशन हो या फिर तकरीरी मुकाबला हो, मैडम प्राइजेस लाती ही थी, और वही तेवर दिखा उनका आज भी, और वाकई बेहतरीन तरह से उन्होंने हमारा गाइडेंस दिया। अब आती है बारी जो मुशायरा लूट ले गए हमारे जज साहब। तो आज का जो है लेक्चर इतना इन्फॉर्मेटिव था सर, मुझे लगता था कि जजेस बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत तो अपने क्या कहना चाहिए प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, और जो कुछ भी इमेज था सब पूरा। तो बिल्कुल एक मैंने जज देखा था जॉली LLB में, और एक जज रियली आज रियल लाइफ में मैंने देख लिया। तो वाकई आई एम वेरी मच इम्प्रेस बाय यू सर, और सर हम आपको बार बार सुनना चाहेंगे। और क्या बोलते हो बच्चों? वाकई सर बहुत कुछ मिला, आपने बातों बातों में मजाक में इतने बेहतरीन मैसेजेस दिए ना सर, कि वाकई हमारे बच्चे मोटिवेट हुए हैं। तीनों मैम लोगों की तकरीर से तो हुए ही हुए, पर जो चौथी स्पीच हुई सर, तो वाकई बच्चों ने बहुत कुछ लिया है सर, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप लोग ऐसे ही आते रहें। सर देखिए 4 सुतून जो है हमने 4 पिलर्स देख लिए, जो वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इतने बेहतरीन मजबूत जब अगर हमारे पिलर्स हैं तो जाहिर सी बात है सर वीमेन एम्पावरमेंट होगा ही होगा, क्योंकि एक तरफ अगर 3 महिलाएं हैं तो साथ में सर भी हैं, और एक क्वालिटी, ए मैन ऑफ क्वालिटी रिस्पेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ ए वुमेन। तो मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे मेल मेंबर्स को जो औरतों को साथ में लेके चलने का काम कर रहे हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना बेहतरीन वर्क हो रहा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल, स्टाफ, स्टूडेंट्स की जानिब से, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, साथ ही साथ हमारी मालेगांव तालुका विधि सेवा समिति की, कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि यहाँ पर ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया जाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर बीबी फातिमा की कि उन्होंने जिस वक्त तो मुझे फ़ोन किया, आई वॉज वेरी हैप्पी। द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैंने कहा यस मैम आई एम रेडी, और मैम ने सर को कहा, जज साहब को, कि जेटी कॉलेज में ये प्रोग्राम करना है, तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है बेटा, कि वाकई। और सर ने तो कह ही दिया कि गर फिरदौस बरुए ज़मी अस्त, तो हम ही अस्त है कि नहीं। तो फिर अच्छा बनना है, बहुत बड़ा बनना है लाइफ में। ये देख लीजिए, ये सब
सब जो स्टार्स हैं आपके सामने, रियल लाइफ हीरोज और हीरोइंस आपके सामने हैं। हमेशा कहती हूँ ना, रियल लाइफ में तो बहुत देखे होंगे, रियल लाइफ में देखिए, दे आर द बेस्ट मोटिवेटर्स फॉर यू स्टूडेंट्स। तो आप देखिए और आगे बढ़िए। और सर, जिस वक्त हम ये पिक्चर्स निकाल रहे थे, मैम आपने जब कहा, सर ने कहा, तो उस वक्त मेरा यही था कि मेरी हर बच्ची में ये सारे कैरेक्टर्स मुझे दिखते हैं। जब हम टीचिंग करते हैं मैडम, तो हमें क्लासरूम में ये सारे पिक्चर्स दिखते हैं कि किसी न किसी बच्चे की शक्ल में ये लोग बैठे हुए हैं। बस उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है सर, और उसी पर्पस को लेके प्रोफेसर मुनव्वर और हमारी टीम ने ये तय किया कि इस तरह के पिक्चर्स लगाए जाएं, एक पिक्चर उन बच्चों को मैसेज दे, और डेली बेसिस पर जब ये देखेंगे तो कुछ तो उनके अंदर जो है आएगा कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। तो सर, मैं बहुत तो फ़ख्र महसूस कर रही हूँ आज इस बेहतरीन प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आपने हमें इस लायक समझा। और आगे भी मैं उम्मीद रखती हूँ सर कि जब भी इस तरह के प्रोग्राम हो तो हमें ज़रूर याद करें। मैम, हम जो है हमारे बच्चों की माँओं को भी बुला लेंगे अगली बार, और बेहतरीन एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे। तो आप लोग हमें मौका दीजिए, इंशाल्लाह हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन सर कि आपने हमें इस लायक समझा, और शिवाड़े सर, आपका भी बहुत कोऑपरेशन रहा। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी आपकी अपनी प्रोफेसर सुनित्रा मिश्रामकर मैडम का कि उन्होंने हमें इतना बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज करके दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, और बहुत बहुत मुबारकबाद। ये देखिए, तालियों की धूम बता रही है मैडम जो है, शी इज़ वेरी पॉपुलर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आखिरी में एक शेर कह दूँ, मुझे याद आ गया। अब सब लोग शेर बोले, सर मैं भी एक बोल देती हूँ। तो आप सबके लिए मैम, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकलो घर से बेसहारों का, तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों, जो कुछ भी आज सुने हो उसको अप्लाई करना, मीन्स अपने जैसे जो है 4 लड़कियों की मदद करना और चेन बनाते चले जाना। करेंगे कि नहीं करेंगे? नॉलेज को बढ़ाने से इल्म एक ऐसी दौलत है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो करेंगे सब लोग? क्योंकि सुन लेना, बाहर निकल के और भूल जाना, वो जो है इस प्रोग्राम का मकसद नहीं है। इसका मकसद ही है ये लीगल अवेयरनेस। तो करेंगे सब लोग अवेयरनेस? ओके, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपको जैसे लग रहा था कि यहाँ कुछ तो भी एक प्रोग्राम लीगल एड की तरफ होना चाहिए, तो हमको भी बहुत लगता था कि हम वो मराठी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम देते, तो इधर भी प्रोग्राम की शुरुआत होनी चाहिए। तो आज का वो दिन बहुत अच्छा आया, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर हमने आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि अभी हम उर्दू मीडियम की तरफ भी बढ़ रहे हैं, यानी वो हमारा भी एक सक्सेस हो रहा है कि हम पूरे मालेगांव के अंदर ये प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। और एक बात बताना मैं चाहूँगा कि कुछ साल पहले मेरा एक छोटा भाई प्राध्यापक डॉक्टर राज त्रिभुवन, जो आप ही के कॉलेज में पढ़ाने को इंग्लिश लेक्चरर थे, वो यहाँ पढ़ाते थे मैडम, आपको पता है, जब कामले मैडम प्रिंसिपल थी। और वो जिस वक्त हमको बताते थे इस इधर का माहौल कि स्टूडेंट कैसे, कि वो कितने पढ़ते हैं, कितना वो अपना अप्रिशिएट करते वो पढ़ने के बाद में, तो हमको भी लगता था कि हम भी क्यों ना वहाँ जाए। लेकिन मैम, डॉक्टर साहबा की वजह से हमको यहाँ आने का मौका मिला है। मैं उनका तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन खास करके मैं प्रिंसिपल मैडम का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमको यहाँ आकर नवाजा, हमको इज्जत दी। मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी प्रोग्राम के आखिरी टप्पे में आने के लिए मैं मिश्रामकर मैडम उनको बुलाना चाहता हूँ कि ये जो आखिरी टप्पा है आभार प्रदर्शन का, आप यहाँ आकर आपका आभार की। थँक्यू सो मच त्रिभुवन सर। आणि आता मी इथे उभी आहे आभारासाठी। आपण सर्वांनी बघितलंच आहे की अनेक भाषा
आणि त्यामध्ये आमच्या डोलारे मॅडमने सुद्धा मराठीतून अतिशय छान आपलं मनोगत व्यक्त केलं. सर्वप्रथम मी आभारी आहे आमच्या JT मॅनेजमेंट आणि ट्रस्टची, ज्यांनी आम्हाला अशा प्रकारचा प्रोग्राम जो आहे तो आयोजित करण्यासाठी परवानगी दिली. मी आभारी आहे आमच्या आदरणीय सलमा मॅडमची, की त्यांच्यामुळे अनेक प्रकारचे कार्यक्रम जे आहे तुम्हा मुलींसाठी नियमितपणे जे आहे ते आपण आयोजित करत असतो आणि आजच्या कार्यक्रमामुळे सुद्धा निश्चितच आपल्याला खूप सारी माहिती मिळाली आहे. मी आभारी आहे आमचे सन्माननीय पिंपळे साहेबांचे. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात त्यांनी आपल्या मुलींना मार्गदर्शन केलं. कुठेच क्षणभर सुद्धा कुठेच बोर झालं नाही, काहीच वाटलं नाही आणि खूप छान. आणि आम्ही निश्चितच पुन्हा आणि पुन्हा आपल्याला ऐकण्याची आम्ही इच्छा व्यक्त करतोय. त्याचप्रमाणे डोलारे मॅडमने सुद्धा अतिशय सुंदर मनोगत व्यक्त केलं. त्यांनी सांगितलं वेगवेगळे कायदे जे आहे, निश्चितच आपल्या ज्या स्त्रिया आहेत, महिलांसाठी जे कायदे आहेत त्या कायद्यांसंदर्भात त्यांनी खूप महत्त्वाची मौल्यवान माहिती आपल्याला दिली आहे. त्याबद्दल मी मॅडमचे पण आभारी आहे, सरांचे आभारी आहे. आणि आमच्या सर्व परिचित असलेल्या ज्योती भोसले मॅडम, ज्या अनेक वर्षापासून या कॉलेजशी त्यांचे ऋणानुबंध टिकून आहे, त्यांनी सुद्धा सुंदरसं मार्गदर्शन केलं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आमच्या सन्माननीय बीबी फातिमा साहिबा, डॉक्टर साहिबा, त्यांच्यामुळे हा कार्यक्रम जो आहे तो निश्चितपणे आयोजित केला गेला आणि यशस्वी सुद्धा झाला आहे. त्याबद्दल मी मॅडमचे सुद्धा आभार मानते. मी आभार मानते आमचे ऑनरेबल ॲडव्होकेट त्रिभुवन सरांचे सुद्धा. अतिशय सुंदर सूत्रसंचालन त्यांनी केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे मी आभारी आहे निकम सरांचे सुद्धा, त्यांनी सुद्धा येथे येऊन आपला वेळ दिला. मी आभारी आहे शेवळे सरांची सुद्धा, की त्यांनी मध्यस्थ म्हणून एक खूप महत्त्वाची भूमिका निभावली. वारंवार ते आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करत होते आणि त्यानुसार पुढची कार्यक्रमाची रूपरेषा जी आहे ती ठरवली जात होती. मी आभारी आहे आमच्या संपूर्ण स्टाफची, की त्यांनी सुद्धा आपला वेळ दिला आहे. आणि हे येथे उपस्थित असलेले जे आहेत ते अतिशय बिझी असतात, पण तरीसुद्धा त्यांनी आपला मौल्यवान वेळ आमच्यासाठी खर्च केला, इथे आले, आमच्या मुलींशी संभाषण साधलं. त्याबद्दल या संपूर्ण टीमचा मी आभारी आहे. आणि आताच सलमा मॅडमने खूप छान शब्द तुमच्यासाठी वापरला, मासूम रोजेदार. बच्चों, सही में आप मासूम रोजेदार हो. तो ये मेरे प्यारे बच्चों ने रोज़ा रहकर भी अब ये आप लोग यहाँ पर बैठे रहे, आपने बहुत अच्छे से सुना और रियली आपको पूरा यकीन है कि आपको मैंने बहुत इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको मिली है ना? ओके, सो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की जानिब से, तालुका विधि सेवा समिति और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और ये प्रोग्राम यहीं समाप्त हुआ ऐसे डिक्लेयर करती हूँ. थैंक यू.